Hey guys, what's up? This is Shavi Jaffrey. You're watching me on Something Hot. Make sure to subscribe to the channel क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आके इंटरव्यूज देते हैं जिन लोगों को आप देखना पसंद करेंगे जैसे कि myself and some really other good people. So thank you so much. Subscribe to the channel, like the video and enjoy. Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. आज का इंटरव्यू धमाका खेज इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सनैलिटीज इन पाकिस्तान. यूट्यूब में इन्होंने तबाहियां मचा के रखी हुई हैं. किंग ऑफ यूट्यूब अगर मैं इनको कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि मेरे अपने घर में बेतहाशा लोग हैं जो कि इनके कंटेंट को फॉलो करते हैं और इनको देखते हैं और बड़े प्यार से और शौक से देखते हैं. एक वेब सीरीज के साथ अपना डेब्यू करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. मेरे साथ मौजूद है द एक्सट्रीमली टैलेंटेड शावीर जाफरी. अस्सलाम वालेकुम शावीर. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई. First of all, thank you so much for such kind words. इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई सच्चाई है. King of YouTube, I'm just a social media influencer who's just trying to make people smile. अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप YouTube के किंग होने के साथ साथ हो नहीं सकते? दोनों चीजें क्यों नहीं हो सकती? No, I don't think I'm the king of YouTube. I think there are other people who are extremely talented and doing great work. I'm trying to be the best at it. Inshallah, I will be. But as of right now, I don't think that's true. But this is my humble opinion. Thank you so much for your kind words. No, I absolutely love your humility. But as I was telling you off screen, my daughters, one is 5 and one is 7, they're obsessed with your videos. And मैंने खुद आपकी बेशुमार वीडियोस देखी हैं और जब भी वो टीवी पे आ रही होती है तो मैं खिलखिला के हंसता हूँ और उनके साथ उतना ही एंजॉय करता हूँ. मुझे भी लगता है कि मैं भी कभी कभी मतलब उन्हीं के साथ के एज ग्रुप में चला गया हूँ. सो द कंटेंट दैट यू क्रिएटिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो मुझे ये लगा कि ये जो खिताब है किंग ऑफ यूट्यूब का ये शायद एप्ट है, लेकिन चलें आपकी ह्यूमिलिटी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. थैंक यू शावीर. मुझे ये बताएं, थैंक यू सो मच. ग्रोइंग अप जी, वो एक ख्वाब होता है ना लोगों का कि मैं कुछ भी बनूंगा, तो आपने ये सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा? नहीं, मैं अपने आप को हमेशा एज ए एंटरटेनर ही देखना चाहता था. मैं अपने आप को यानी कभी ये मेरे पास कोई और आइडिया आया ही नहीं था एंटरटेनमेंट के अलावा. मैं अपने स्कूल के अंदर भी आई वाज अ क्लास क्लाउन. अपने स्कूल के अंदर आई यूज्ड टू डू दीज स्टेज शोज. आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स. मैं इसी तरह के सारे कामों में बिजी होता था rather than studying on the subjects that were being taught in the school. I was very least interested in those things. Although I'm a marketing student. अच्छा. हाँ जी, I've done my bachelor's in marketing, but I couldn't imagine a life जिसके अंदर मैं 9 to 5 नौकरी कर रहा हूँ. I always wanted to do something that was towards the creative end. Always. So बचपन से आप जैसे बता रहे हैं स्कूल में skits and plays and all of that ये आप कर रहे थे? Absolutely. तो ये कैमरा कब पकड़ा आपने? यार I actually एक फनी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. मेरी जो मामा है उन्होंने शायद उस वक्त इसको उस तरह इन्होंने सोचा भी नहीं था, but there was a time when my mom made a vlog and she made a vlog. Yes, and this is in early 2000s when we were moving from Pakistan to Canada. You were moving from Pakistan to Canada? To Canada, and my mom had one of those big cameras at the time, handy cams. Yeah. And she just recorded the transition. And although that was never in her head that that's a story that she's capturing, but she ended up actually making the first vlog in the Jaffrey family. And we still look back at her and to that vlog. Maybe one day we'll post it. And we go like, Mom, you're the OG. You started this. You know, ये कीड़ा कहाँ से आता है शायद मुझे समझ आती है because my mom was always a creative and still is a creative person. Apart from that, my Dada Abu was a very creative person. He used to write stories. Achha. He used to write novels. Yeah, Kaisar Jaffrey was his name. He was also a very creative individual like myself. So I think I get it from half from my Dada Abu, half from my mom's side. So it's like kind of 100% हो गया. 100%. 50 वहाँ से है, 50 यहाँ से है.
ये मुझे नहीं पता था. I thought you were born in Canada and then you moved back to Pakistan now. No. I was born in Pakistan. I was born in Karachi, raised up in Lahore, and then spent my life in Canada, basically. So I think I was like 11, 12 when I moved to Canada. And then now you've permanently moved back to Pakistan. Yeah, now I've been back for a couple of years, and I hope to stay back. शाविर कनाडा अच्छा है या पाकिस्तान अच्छा है? Yeah, these borders, the ideas of borders we have created in our minds. That being said, I'm a very patriotic guy. I mean, one of the reasons why I wanted to come back to Pakistan is because मैं ये अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ और उनको अक्सर ये चीज़ समझ नहीं आती. इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था तो 10,000 लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था this is a bad idea, don't go back to Pakistan. But my vision, my goals are big enough for me to follow my dream of coming to Pakistan. And the reason why I wanted to come back is because I believe a film industry, it starts here. A film industry is a language that a country uses to communicate with the rest of the world. Now try to understand that कि अगर एक फिल्म इंडस्ट्री होती है तो आपकी रिप्रेजेंटेशन दुनिया में कैसी होती है वो फिल्म इंडस्ट्री डिसाइड करती है. आज मैंने और आपने ये वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं सो कॉल्ड, गोरे तो यहाँ आके हमें पहना के नहीं गए. We watch their culture through their entertainment mediums and we get so inspired by them. We go like, yaar, kamal yaar, zabardast yaar, good fashion. We should do this here in Pakistan. You know, we don't have that language. Nobody knows who we are. And Pakistan is missing that because I feel like that we are just a little lazy when it comes to having a medium and nobody wants to work hard. तो मैंने सोचा कि यार अगर हमारी जनरेशन भी ये अब स्टेप लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं करेगी और एंड ट्राई टू डू समथिंग बेटर, फिर कोई नहीं करेगा. देयर इज नो पॉइंट. सो आई रियली वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई गिव इट माय ऑल टू एस्टैब्लिश द फिल्म इंडस्ट्री. जो भी मेरे से हो सकता है मैं अपना तो 100% दूं ना इस फिल्म इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में. एंड दैट्स माय ओनली पर्पस इन लाइफ. यू नो कहते हैं ना कि यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ. That is that purpose in my life. That on my deathbed, whenever that is, I want to look back and I want to go like, dude, I did it. Yes, we did it. This is very, very heartening and obviously impressive as well कि आपका thought process ये है. फिल्म इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो आप obviously I'm sure you're aware कि पाकिस्तान में तो फिल्में इतने लंबे अरसे से अब बनी नहीं थी. बनना शुरू हुई थी कोविड की वजह से, फिर यू नो देयर वाज अ मेजर सेटबैक. अब आहिस्ता आहिस्ता होपफुली इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे रिवाइवल. मेजरली पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इज रन बाय द टीवी इंडस्ट्री, जिसको हम द ड्रामा इंडस्ट्री कहते हैं. आपको बड़ी ऑफर्स आई लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और अभी भी मुझे पता है कि आपको एक बड़ी मेजर ऑफर आई हुई थी. बता दूं या चले नहीं बताता, फिर आपकी राय नहीं उसमें. How do you know that? Nobody knows that. I know that. So आपको एक बहुत मेजर ऑफर आई हुई थी. अगर आप वो कर लेते तो शायद एक अच्छा चले, let's not get into it. I would have become a celebrity. हाँ, वो जो एक बात yes, the standard term. People who've done it have become household names. Yeah. As far as the TV industry is concerned. Yeah. You not opted for it. और आपने अभी हमारी इंटरव्यू में उस दिन आमना से बात करते हुए आपने कहा कि you wanted to take up a project जिसका कोई ना कोई मैसेज हो. तो एक तरफ आप फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं एंड दैट इज एसेंशियली एंटरटेनमेंट. दूसरी तरफ आप टीवी इंडस्ट्री में हिस्सा नहीं ले रहे. तीसरी तरफ आपने जाके एक बड़ा ऑफ बीट किस्म का प्रोजेक्ट चूज कर लिया, 12वां खिलाड़ी, जो कि एसेंशियली एक ऐसी ऐप के ऊपर जाएगा जिसको मेजॉरिटी पाकिस्तानी को तो अभी जानते भी नहीं है. होपफुली इंशाल्लाह थ्रू 12वां खिलाड़ी उनको पता चल जाएगा. तो ये जो आपका डिसीजन था, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? यार मेरे जो डिसीजंस होते हैं ना वो एक्सट्रीमली अगेंस्ट माय पेरेंट्स होते हैं. मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने नाराज हैं कि तुम्हें अल्लाह मियाँ ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तुम्हारा दिमाग खराब है. लेकिन यार पता नहीं क्यों जहां पे मेरा दिल नहीं लग रहा वहां पे नहीं लग रहा, और उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. मेरे पास कोई इस तरह की एक्सक्यूज भी नहीं है कि यार वो छोटा शो था जो मुझे ऑफर हुआ था. यार वो बहुत बड़ा शो था. दैट वुड हैव चेंज्ड माय लाइफ. I can still go back and still do it. It's not too late. I know that. I know that. But you know, some plans, some goals of yours are just bigger than just some short-term goals.
नहीं वो शॉर्ट Your आपको vision लगता है is- कि वो शॉर्ट टर्म गोल है? Sir, I क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए- सॉरी आपकी बात, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हम लोग ड्रामे रिव्यू करते हैं और सारे ड्रामे देखते हैं और यू नो अ प्रोजेक्ट लाइक दैट आई वुड थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर, मुझे ऐसा लगता है। सो उसको ना करना और उसके बरक्स एक वेब सीरीज के लिए ऑप्ट करना, और वेब सीरीज की जनरली पाकिस्तान में उतनी उस लेवल की ऑडियंस market नहीं है। नहीं है। सो ये जो डिसीजन, ये जो डायनामिक है, ये बड़ा कोई मतलब लाइक यू नो इस मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस सोच के पीछे आपकी क्या एक हो सकती है? Sir, the only reason why I picked Barma Khiladi was for its story, for that the story is a little different than your average entertainment shows that you watch on your TVs. हाँ, Literally, there is no other reason. I'm waiting for the day that I'm going to get a script or get an offer from TV, from Pakistan Television, on Hum TV or Jio or Airway or anywhere, any big platform that asks my soul, that challenges my soul, that challenges my character, that the story is so challenging, it's so nice, it's so beautifully written, and people are ready to do it. The sound is good, the acting is good, the cast is good, the directors are good. I'm not saying I'm a good actor at all. I'm just saying that as an actor who's trying to establish himself, I want to do something that challenges me, not something that anybody can do. That's Not easy. something that's easy. And the what I feel like the issue is that a lot of the TV dramas, ये एक बहुत ही ये सोच मेजॉरिटी लोगों की है, खाली मेरी नहीं है, कि बहुत सारे टीवी ड्रामास की स्टोरीज एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सी चीजें आगे पीछे होती हैं। ऑल्दो बहुत सारे शोज हैं जो कि डिफरेंट बन रहे हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं जो कि अब उस लेवल पे बनना शुरू हो गए कि आप देखकर को यार दिस इज अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई लव्ड बागी, जो सबा कमर ने किया था। आई लव्ड इट बिकॉज दैट वाज टचिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, अ वेरी डिबेटेड टॉपिक। क्या वो सही थी, क्या वो गलत थी, क्या उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ, क्या उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस तरह की चीजें आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ टुमारो। बट एन एवरेज स्टोरी जिसके अंदर बस घर बार की कहानी है थोड़ी बहुत, that doesn't really challenge me, and that is something that I wouldn't opt for. And I don't know how these decisions will turn out to be in the long run or short term for me. I'm just taking these decisions based on my core values. But again, I'd and like instincts. I'd like to appreciate the thought process here कि यार मैं काम वो करूंगा जो कि मेयारी हो, जो कि अच्छा हो, अच्छा कंटेंट होगा तो मैं उसका हिस्सा बनूंगा। और वो शायद आपकी वो जजमेंट गलत हो सकती है कि यार ये अच्छा कंटेंट था या नहीं था। बिल्कुल। But agar as long as you're willing to only opt for projects that are about to bring any sort of a positive change in society, be it only in terms of creating good content. हमारी सोसाइटी में तो ये भी चेंज की जरूरत है ना यार, कि आप कंटेंट ऐसा बनाएं कि जिसकी ऑन द वेरी बेसिक लेवल प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो और कुछ हो ना हो। फिर वी कम टू द स्क्रिप्टिंग एंड देन वी कम टू द साउंड। आपकी साउंड की आपने बात की, हमारे आधे ड्रामों की तो डबिंग इस तरह की हुई होती है, डायलॉग्स ही नहीं सुनाई में देते। सो वो जो आपका एक टेक्निकल एक्सपीरियंस है, इट्स गुड दैट आप उन लाइंस पे सोच रहे हैं। 12वां खिलाड़ी आपने ऑप्ट किया और आपने ये कहा कि इट्स द टीम दैट रियली इम्प्रेस्ड यू एंड दैट मेड यू साइन द प्रोजेक्ट। दैट्स द रीजन अगेन कि आपको लगा कि जो जिस तरह का विजन है आपका पाकिस्तान में कंटेंट को लेके, वो उस पर पूरा उतरेंगे। देखें, मुझे ना, क्योंकि मैं शोज़ पाकिस्तान टीवी शोज़ मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, ड्रामा ज़्यादा मैंने देखे नहीं है, और ना ही मैंने यहाँ पे ज़्यादा फिल्में देखी हैं, ऑल्दो आई शुड नाउ। लेकिन मुझे जितना बताया गया अदनान सरवर के बारे में, सर अदनान सरवर जो है, ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद शूटिंग अ स्पोर्ट्स फिल्म। तो मुझे सबसे पहले तो उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद मुझे बताया गया कि इसके प्रोड्यूसर्स कौन है, उसके बाद मुझे एक्टर्स का बताया गया। तो जब मुझे पूरा पैकेज बताया गया, उस वक्त मैंने सोचा कि यार दिस टीम इज़ वेरी टैलेंटेड, these are a bunch of individuals that I would love to be associated with. Like, I'd love to be a part of this team, and that was the decision based on the story was different. Number one, boom, I want to do it. Number two, it was a Mahira Khan Nina Kashif production, boom, I want to do it. Number three, the director is amazing. Number four, the team is really talented. You have no idea how good of an acting job Kinza Hashmi and Daniel has done in this show. Like, when you watch the show, it's so amazing to see these young, beautiful people just coming out and giving it their heart.
and you will truly enjoy the cinematic experience on your phones or on your TV screens, that you'll be impressed by the acting that has been done. And then Sarmad Khusat, brilliant actor. फवाद का भी कैमियो है बीच में। फवाद भाई का भी कैमियो है, शोएब मलिक का भी इसके अंदर कैमियो है. सो दिस शो इज लाइक फुली पैक्ड. आई एम नॉट गोना से, आई डोंट नो कि इसका फाइनल कट, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा अभी. आई एम नॉट गोना से कि इसका फाइनल कट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, क्रिटिक्स आर गोना लव इट. नहीं, मुझे ये कुछ नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमने इसके अंदर मेहनत जो की है वो रियल की है, और जो हमने ऑन द सेट चीजें देखी है, जिस तरह की एक्टिंग मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस की है, वो जेन्युइनली इंप्रेसिव थी. And that's all I care about. मैंने जो जब ट्रेलर देखा तो आई वाज इम्प्रेस्ड. और ना सिर्फ आपके काम से, बट जिन सब का आपने नाम लिया सभी का बहुत अच्छा काम है. आपके केस में मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए भी हुआ कि अगेन गोइंग बैक टू योर यूट्यूब वीडियोस, आपका एक वो बड़ा शुगल मौज मस्ती हल्ला गुल्ला एंड कंप्लीटली लाइक फन इमेज है. सो जब आपको ये कैरेक्टर मिला भी, तो आई सपोज वो भी एक थॉट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज होगा यार कि मैंने अपनी उस इमेज के अगेंस्ट जाना है, और वो एक ब्रैटी सा बच्चा प्ले करना है. तो ये ना हो कि वो जो मेरी फैन फॉलोइंग है इतनी बनी हुई, वो कहीं नाराज ना हो जाए, या एक्सेप्ट करें या ना करें. ये थॉट आई थी? नहीं, बिकॉज अब आ रही है जो मैंने बोला है. नहीं, बिकॉज आई फील लाइक ऑडियंस जो है ना, पहले इस तरह का शायद होता था कि जहां पे ऑडियंस यूज्ड टू बेसिकली थिंक कि जो ऑन स्क्रीन है वही ऑफ स्क्रीन है. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस डिस्टिंक्ट करती है, डिफरेंशिएट कर लेती है कि यार ये बंदे का कैरेक्टर है और ये बंदा असली है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, you don't go like this man is evil. You say कि यार this man is a good actor. But when you talk about Shah Rukh Khan, you always think he's lovely. You know why that is? Because in the old time, Shah Rukh Khan हमारे basically जिस time cinema आ रहा था Shah Rukh Khan वाला, उस time everything was realistic. What was on screen, you used to think that is exactly how off screen is. लेकिन अब ऑडियंस इतना एजुकेट हो चुकी है, लोग इतना एजुकेट हो चुके हैं कि वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक्टिंग क्या है और रियलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, इस शो के अंदर मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि मैं नहीं हूँ. लाइक रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ. जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट, अगर किसी को लग रहा है नहीं है ऐसा, प्रॉमिस यू, आई स्वेयर टू गॉड. लेकिन इस शो के अंदर गालम गलोच भी है. ये शो बहुत रॉ है. इसके अंदर अजीब अजीब सी गंदी गंदी बातें भी हैं. इसके अंदर प्यार भरे मोमेंट्स भी हैं. इसके अंदर एक फादर सन का रिलेशनशिप है, एक माँ बेटे का रिलेशनशिप है, दोस्तों की आपस में गंदगी का रिलेशन है, अच्छाइयों का रिलेशनशिप है, बैटल है, राइवलरी है, बहुत कुछ है जो कि आपको देखने में बड़ा मजा आएगा. और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को देख के कहेंगे कि शावीर ने एक्टिंग अच्छी की है, ना कि शावीर ऐसा है. इसकी एक वजह पता है ये भी है, जो आपने शाहरुख खान वाली जो बात की 90s में या उससे पहले, देयर वाज नो सोशल मीडिया. तो हम जो स्टार्स को देखते थे, हम स्क्रीन के ऊपर ही देखते थे, हम उनके ऑफ स्क्रीन पर्सोना से वाकिफ ही नहीं थे. आपके केस में इन पर्टिकुलर लोग आपके ऑफ स्क्रीन पर्सोना से ज्यादा हद तक वाकिफ है. अब जब आप स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो उनके लिए और ज्यादा आसान होगा वो डिफरेंशिएट करना कि ओ नो, हम तो ऑलरेडी शावीर को इस तरह से देखते आ रहे हैं, अब शावीर ने नेगेटिव रोल किया तो यार एक्टिंग बड़ी अच्छी की है. It's not that he's like that. So that's very well put and nicely pointed out, because I didn't think it from that angle. लेकिन हाँ, very interesting way of thinking कि यार off screen जो है, अब हम audience से directly connected, and perhaps this is the reason why, as you said, your daughter is a fan and a lot of other kids come to me and parents come to me कि आप हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते. And that, I think that is the reason why social media, this generation, we are such big influencers or such big influencers to young people, because they feel like we're a part of their lives. Like probably your children, when they watch me, they don't go like I love this guy, I'm a fan of his. That child subconsciously probably thinks कि यार I know this man inside out. They emulate you. उसके बाद they do the videos. There you go. They follow the characters. You know when we meet people, when I meet people, they give me an impression as if I know them. Hi Shaveer, how are you? Good to meet you. Yes, who are you? You know, because from my point of view, I don't know you, but from their point of view, they think that him or her and I have a relationship. We are friends. And that's what social media does, because हमारी जो vlogs होती हैं, हमारी जो videos होती हैं, they're on such a personal level on your tablets, on your phones,
get so close to you. You feel like that this person is a Yeah. part of my life. And they treat me like one. They treat me like a family member. And it's amazing. It's beautiful. So tell me something now. जो आपके vlogs में या आपके YouTube videos में आपका persona हम देखते हैं, how close is to the real you, or is that completely you? या कुछ आपने संभाल के अभी भी रखा हुआ है कि जो आपने नहीं दिया स्क्रीन को? हाँ, I'll tell you actually. मुझे लगता था for the longest time that the social media persona is 100% me. मुझे हमेशा से ये लगता था. मुझे लगता था मैं यही हूँ. वो गलत इसलिए है क्योंकि अक्सर जब लोग मुझसे मिलते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि आप धीमे हैं, आप काम हैं. लेकिन on social media you're a ball of energy. And I realized something, that on social media when you upload something, that is 100% the best version of you. Because why would I want to post something that is 90% me, Yeah. 80% me, or 70% there? I would always aim to post something that is 100% there. So in that 100%, in pursuit to create 100%, you end up giving a little more energy that otherwise you'd contain to fill the 24 hours in your day. But in that 10 minutes of video on YouTube, when you're creating those moments, for example, हाँ भाई action है, camera on, okay. Hey guys, welcome, So although I'm talking to you, this is how I am right now. You feel the energy, you feel the vibe. अभी सोकर उठा हूँ मैं. लेकिन फिर भी, he walked in. I just want to clarify for people. ये जो set में हम लोग बैठे हुए हैं, he walked in and I was sleeping on the sofa that Hassan bhai is sitting on right now. Just want to clarify. But I'm active, I'm energetic, I can dance for you, I can do anything. लेकिन वो social media पे ना that there's this extra 10% that I go. तो जब लोग किसी ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं where Shavir is at say 60%, तो फिर क्या होता है? फिर वो डिसअपॉइंट होके जाते हैं. आप क्या कोशिश करते हैं कि वो डिसअपॉइंट किस तरह से कोशिश करते हैं कि वो ना हो डिसअपॉइंट? See, this is Hassan bhai, this is something that I'm dealing with on a daily basis. मेरे घर का लोगों को पता है. मेरे घर के अंदर ओपन हाउस पॉलिसी है. जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे दोस्त यार हर कोई मेरे घर आता था, स्टोरीज लगाते थे. उस तरह लोगों को पता लग गया मैं रहता कहाँ हूँ. तो यानी कि दिन में आप समझे कि 150 बंदा मेरे घर आता है एवरी डे टू टेक सेल्फीज. ओके. अब आप जगह बना के रखते हैं घर के बाहर. I wish this was the case. One day I hope that everybody knows the address of my house, just like Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan. And then once a week, आप चढ़े ऊपर. Once a week, नहीं ऊपर नहीं चढ़े. Once a week I go amongst them and I talk about, हाँ भाई बताओ इस वीक मैंने कोई गलत काम किया या क्या मेरे अंदर तुम लोग चेंज देखना चाहते हो या किस तरह की चीज देखना चाहते हो, इसको हम आगे लेके कैसे चले. I wanna go there. लेकिन अब तक मेरे साथ होता ये है कि every 2 minutes my guard would come to me and be like, शाविर भाई आपसे बाहर कोई मिलने आया. अच्छा, गो आउट टेक अ सेल्फी. शाविर भाई आपसे कोई मिलने आया. तो मैंने फिर एक सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट की कि देखिए भाई मुझसे घर पे मिलने ना आए, क्योंकि हर वक्त ना हर बंदा 100% फील नहीं कर रहा होता. कभी कभी मैं काम में बिजी हूँ, कभी कभी मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कभी मेरा मूड ऑफ है, कभी कभी नींद पूरी नहीं हुई हुई. जैसे कि हम लोग ये इंटरव्यू कल करने वाले थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम आज कर लें, आप अंडरस्टैंड कर गए. लेकिन अक्सर फैंस होते हैं यार भावलपुर से मिलने आया हुआ. अब फिर जाना पड़ता है बाहर, उनसे मिलना पड़ता है. फिर आपको अपने आप को चलो यार, कम ऑन शावीर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू साइंड अप फॉर इट, यू नो दिस इज गोना हैपन, यू नो दिस, यू साइंड अप फॉर इट. वो तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम हो कौन? पापा तो मेरे ऐसे हैं, पापा पाकिस्तान आए तो बाहर ना कुछ लड़के वेट कर रहे थे घर के. नहीं सॉरी, ये कनाडा की बात है. मैं कनाडा गया वापस अभी 2019 में. मैं कनाडा वापस गया, एयरपोर्ट से हम लोग घर आए, कनाडा के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो लोग मिलने आए हुए. पापा ने कहा चलो चलो बच्चों आ जाओ, अंदर आ जाओ. मैंने कहा पापा नहीं, मैं क्या बात करूंगा अंदर जाके. कहते यार जो तुम्हारे फैंस है इतना प्यार करते हो तुमसे, किस तरह के हो तुम, मगरूर. मैंने कहा यार ये बात नहीं है, मैं एक्चुअली कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इनसे क्या कहूंगा. अंदर जाके फ्लाइट लेके आया हूँ मैं, अभी मैं लैंड हुआ. पापा कहते मुझे नहीं पता, करो. वहां जाके हम बैठे, मैंने उनसे बातें शुरू की, पता लगा कि ये तो यूएस से मिलने आए हुए, मेरे से अमेरिका से ड्राइव करके आए हुए कनाडा शावीर से मिलने. तो आई समटाइम्स गेट ट्रूली अफेक्टेड बाय दिस. लाइक आई समटाइम्स लाइक आई मूव एंड आई प्रीवियसली, मैं कुछ फैंस की कहानियां सुनता हूँ, आई हैव क्राइड with the love and affection people have, because truly people feel like I'm a part of their lives, and that brings a lot of responsibility on my end to act upon that. For example, if I'm a part of their family,
अगर उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोलूं. And it gets tricky when there are millions of people that feel the same about you. So yeah, that is. So clearly you're aware of the impact that you've had on a generation of youngsters. बल्कि नहीं, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोटी बड़ी हर जनरेशन आपको दिखती है और जानती है. तो ये जो वेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए आपने क्या सोचा? या ये बस आपका है कि चलता रहे इंशाल्लाह इसी तरह? Sir, you know, fame is a blessing in disguise. I don't know what I would do without fame, and I definitely don't know what I'll do with fame. I don't know how to handle fame, and this is the problem with famous people. You're doing pretty good, Shaved. I know, I understand that, but this is, you see, fame. जो फेम है ना, वो एक बहुत ही फाइन लाइन पे है बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी. आप यूं पागल हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जाते हो, आप बाहर निकलते हो मॉल में, 1000 लोग आपसे मर रहे हैं मिलने को, आपसे सेल्फीज ले रहे हैं. आप घर आते हो, घर आके आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके डेली रोजमर्रा के रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे आपसे कोई बदतमीजी करता है, आपको एकदम लगता है कि यार 1000 लोग, इतनी रिस्पेक्ट, यहाँ पे बेइज्जती मुंह पे डायरेक्ट. आप सोचते हो कि ये गलत है चीज. सही क्या है, ये सही है या वो? एक्सक्यूज मी, मेरे से बदतमीजी से बात नहीं करना, मैं ये हूं. ये होता है ईगो. ईगो इंसान को इवेंचुअली पागल कर देता है. फेम इंसान को इवेंचुअली पागल कर देता है. अब इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या हरबे या तरीके आजमाए हैं, वो उनमें से एक तरीका है मेडिटेशन. मैं मेडिटेट करता हूं. और एक हमारे दोस्त हैं, वो घर आते हैं, वो आके मुझे थोड़ी सी मेंटल ट्रेनिंग देते हैं. तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा, तो वो मुझे ना जमीन पर रखने की कोशिश करते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई फील लाइक आई एम ग्राउंडेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद द फेम एंड द लव एंड द रिस्पेक्ट पीपल गिव मी. क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वो इंसान ना बनूं जिसके दिमाग में ये थॉट्स आ रही हैं कि यार देखो लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैं वो इंसान बनूं कि यार आई कैंट बिलीव कि इतने सारे लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हैं. What was that moment when you realized कि ये हो गया अब? That's a funny story. I'll tell you, and you guys will laugh too, I can guarantee you. This is back in 2016 or 2015 or 2017, one of those years, in Canada. I used to make these Facebook videos, funny videos. शुरू में उस वक्त Facebook पे हम लोगों ने लगाना शुरू की. जनाब, मैं उस वक्त ना ऑल्दो फेसबुक वीडियोस बना रहा था, लेकिन पैसे वैसे हमें कोई नहीं मिल रहे थे, क्योंकि फेसबुक उस वक्त पैसे नहीं देता था. मैंने क्या किया, मैंने फुल टाइम जॉब्स ढूंढ ली. अच्छा. सो आई यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी में मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, देसी कम थे वहां पे. I used to do my videos on Facebook, and I used to have a full-time job at this pizza store. Pizza store. जी. तो अब मैं 3 काम कर रहा हूँ. फुल टाइम यूनिवर्सिटी, फुल टाइम पिज्जा स्टोर, फेसबुक वीडियोस भी मैं साथ साथ कॉमेडी वीडियोस अपनी तरफ से बनाई जा रहा हूँ. अब आप अंदाजा लगाएं कि एक दिन मैं स्टोर को क्लोज कर रहा हूँ. मेरी क्लोजिंग शिफ्ट थी, सो मैं टाकी लगा रहा था उस वक्त ना. स्टोर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, टाकी लगा रहा हूँ. मेरा ख्याल है मेरे को 2.5 लाख फॉलोअर्स थे फेसबुक के ऊपर, लेकिन मैं स्टोर क्लोज कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, मैं टाकी लगा रहा हूँ. फिर मैंने बाथरूम साफ किया जाके उस रेस्टोरेंट में. उसके बाद वापस आके मैं झाड़ू लगा रहा हूँ. एकदम से 3 लड़कियां ना स्टोर के बाहर से मेरे चीखों की आवाजें भागती भागती अंदर आई. दरवाजा खुला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, द स्टोर इज क्लोज्ड. वो कहती ओह माय गॉड शाहीन जाफरी. मेरे हाथ में टाकी, सामने से 3 लड़कियां भागी आ रही है सेल्फी लेने के लिए. वो कहती सेल्फी सेल्फी सेल्फी. मैंने कहा ओके. Took a selfie with a taki in my hand, and I'm closing the store. I'm wearing like a blue shirt. और मैं कह रहा हूँ shit, I think I made it. That was one of my first few experiences. इसके बाद I've also driven Uber in Canada. अच्छा. हाँ, I've done everything, man. I've driven Uber in Canada. At this point मैंने कहा यार नहीं यार, मैं ये यहाँ से मेरी वो जॉब छूट गई किसी तरह से. उसके बाद मैंने ऊबर ज्वाइन कर ली थोड़े से वक्फे के बाद. अब मैं YouTube पे आ गया हूँ. मेरे को 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं YouTube के ऊपर. What year is this? This is 2017. क्योंकि 2018 में भी YouTube पे आपकी पहली वीडियो 5 साल पहले चढ़ी है मेरे ख्याल में. हाँ, 5 साल इसी तरह का कुछ था.
हाँ, लेकिन वो उससे मैं पैसे वैसे नहीं कमाता था उस वक्त। पैसे मैंने व्लॉगिंग के जमाने में कमाए। जब मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू की है तब जाके मुझे थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हुए थे। उससे पहले आई डिडंट मेक एनी मनी, तो मैं जॉब्स ढूंढा करता था। तो ये बिल्कुल नया नया मैं यूट्यूब पे आया था, 2016 की बात और होगी तब आप उबर चला रहे थे? और मैंने उबर चलाना शुरू कर दी, क्योंकि यूट्यूब तो मैं कह रहा था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और मैं कोशिश करता था कि मैं मामा को थोड़े बहुत पैसे दूं, वो अपना खर्चा चलाएं, थोड़े बहुत मैं पैसे रखूं, मैं अपना खर्चा चलाऊं। तो इसके लिए मुझे फुल टाइम उबर करनी पड़ती थी। मैं 40-50 घंटे उबर चलाता था। अब इस वक्त मेरे फेसबुक के ऊपर मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स थे और मेरे यूट्यूब पे भी 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन पैसे मैं नहीं कमा रहा था। तो मैं उबर चलाते चलाते अक्सर होता ये था कि कोई देसी लड़का या कोई देसी लड़की राइड एक्सेप्ट कर लेते थे। और जब वो राइड एक्सेप्ट करते थे, हम पाकिस्तानियों की तरह तो उनका ईगो है नहीं कि वो उबर ड्राइवर के पीछे जाके बैठेंगे, वो आके बैठते हैं साथ। ठीक है, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी देसी लड़की या लड़के ने उबर एक्सेप्ट कर लिया, मैं कहता था यार ये मुझे पहचान ना जाए। वो आते थे, आके उबर में बैठते थे। एंड ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि यूं आके बैठे, हाय शावीर, ओह माय गॉड, कांप रहे हैं हम, सच ए बिग फैन, सेल्फी। मैं तो जी किधर जाना है आपने, किधर छोड़ूं आपको मैं। एंड दैट वाज अ डेली, ये रोज होता था मेरे साथ। और मैंने एक वक्त आया जब शुरू में मैं थोड़ा सा इससे एम्बैरेस हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि यार क्यों मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ, दिस इज माय वर्क, दिस इज हाउ आई मेक मनी एंड nobody should care. And I just started enjoying those moments, those little moments, and I still miss those moments कि यार if I get a chance I want to do the same when I go back to Canada just for fun। एक दिन के लिए ना मैं करना चाहता हूँ ये बात। अब 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, बट पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो आपकी YouTube वीडियोस का क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि इतनी सारी आपने बनाई है, इतने सारे कैरेक्टर्स, रोमियो और चिंटू ही है ना? हाँ, तो वो ये जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टराइजेशन है, ये वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता था? ऑब्वियसली आपसे ही अंदर से ही आता होगा। कितना टाइम लगता था और फिर इसको एग्जीक्यूट करने का जो सारा प्रोसेस है वो क्या था? यार ये बात है, ये भी जब मैंने बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि 2 साल 1.5 साल हुआ था मुझे YouTube शुरू किए हुए, तो मैंने एक दफा, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन विद समथिंग, लेट्स नॉट गो इनटू व्हाट आई वाज हार्ट ब्रोकन अबाउट। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन एंड आई वाज लॉक्ड इन माय रूम फॉर लाइक अ कपल ऑफ वीक्स। अब वो मैं जब कमरे में बंद था ना, तो मैं बस सोचना शुरू हो गया बहुत ज्यादा टुवर्ड्स हाउ टू स्पेंड माय डेज progressively, how to spend my days and make sure I'm not wasting my time. तो How old would you be around this time? 22 ठीक है। तो बस मैंने कैरेक्टर्स लिखना शुरू किए कुछ। मैंने कहा कि यार what would people enjoy watching, what would I enjoy watching, and I was like comedy, okay, what in comedy? मैंने कहा let's, मेरे पास ना प्रोडक्शन टीम थी, ना कैमरे थे, ना ज्यादा पैसे तो थे ही बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि यार इस पॉइंट पे फेसबुक आप कर रहे थे या कर रहा था, फेसबुक में कह रहा था। तो मैंने कहा यार आमने सामने कैमरास रख के ना, यूं करके एक दफा यूं एक कैरेक्टर कर लेता हूँ, फिर इस साइड पे कैमरा रख के उस कैरेक्टर का दूसरा कैरेक्टर करके आपस में उनकी बातें करा देते, देखते कैसा आता है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग दीज एपिसोड। आई रोट 22 एपिसोड्स फॉर रोमियो एंड चिंटू। अच्छा। या एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड शूटिंग खुद ही। हाँ। कैमरा कहीं से, कहाँ से पकड़ा आपने? नहीं, कैमरा ट्राइपॉड पे रखता था जिस तरह ये पड़ा। नहीं तो कैमरा ले लिया ना एक आपने? फिर कैमरा मैंने ले लिया उस वक्त तक। और एक ही कैमरा उस तरफ जाके, फिर कपड़े चेंज करके उस तरफ, फिर वो डायलॉग में सो गया, इतना गुस्सा चढ़ता था यार, बाल चेंज करो, के शर्ट चेंज करो, मेकअप चेंज करो, जाओ जाके उस साइड पे बैठो, क्योंकि एक के यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग था, थोड़ा सा एक अलग था। फिर बीच में उसके पिंकी चाचा थे, उनके यहाँ पे तिल होता था। तो बड़े बड़े कैरेक्टर की। और ये मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी इंस्पिरेशन मुझे बीबी की वाइन्स से मिली। अच्छा। मैंने बीबी की वाइन्स, अगर आप इंडियन एक यूट्यूबर है, वो इस तरह की वीडियोस बनाता था जिसके अंदर वो अकेला है लेकिन वो 5-5, 6-6 कैरेक्टर्स कर रहा होता था, और इंतहाई फन, बहुत फनी। मैंने कोशिश की कि उसकी तरह बने, लेकिन फिर भी उसकी तरह नहीं बनी, क्योंकि वो बहुत जीनियस आदमी है when it comes to comedy. So but at the end of the day, getting a lot of love. I think Romeo Chintu has over 100 million views altogether, all of the videos, all of the 22 episodes. Crazy. Yeah, it's huge. मेरी बेटियों ने आपको मैसेज भेजा कि आप रोमियो चिंटू वाली वीडियोस बनाना शुरू हाँ, मुझे बहुत आते हैं मैसेजेस। Maybe one day they'll come back. You never know. You never know.
तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऑब्वियसली इक्विपमेंट लिया और ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर होती गई। ये सीखा कैसे आपने? क्योंकि हम भी यूट्यूब के ऊपर ही अपना काम कर रहे हैं और माशाल्लाह 3 साल हो गए। बड़ा मुश्किल और टेक्निकल काम है। Yeah, a lot of people underestimate what goes behind these videos. Imagine कि आप खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद डायरेक्टर हैं, खुद ही खुद एक्टर है, राइटर हैं, खुद एक्टर हैं, खुद एडिटर हैं। एडिटर 5-6 जॉब्स आप कर रहे हैं एक बंदे में, और लॉजिस्टिक्स भी आप हैं, साउंड भी आप हैं, प्रॉपर और प्रोडक्शन फिर वो कहते हैं यार पैसे बड़े कमा रहे हो, काम भी तो 7-7 8-8 लोगों के कर रहे हैं भाई। आर्ट डायरेक्टर आप हैं, क्लीनर आप हैं, सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट आप खुद हैं। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, इस तरह की वीडियोस के पीछे। सॉरी, मैं आपका सवाल मेरे दिमाग से निकल गया, क्या कि सवाल था? ये आपने सीखा कैसे प्रोसेस? ये यार, एडिटिंग फॉर एग्जांपल, ये इन इटसेल्फ इतना मुश्किल काम है। हाँ, मैंने अपना ना जब मेरी यूनिवर्सिटी नई नई हुई थी ना, तो मैंने पहला अपना कंप्यूटर खरीदा ओसैप के पैसों से। ओसैप वहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट लोन, जो कि होता है कि गवर्नमेंट आपको लोन देती है, गलत बात है लेकिन मैं चले कह रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको कनाडा में पैसे देती है कि अच्छी गवर्नमेंट है ना, कि ये लें शावीर, आप स्टूडेंट हैं, आप काम ना करें, आप फोकस करें पढ़ाई में, पैसे हम आपको देते हैं। हाँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने पैसे लिए, मैंने काम भी कर लिया। वो जो पैसे मेरे पास थे, जिन पैसों से मैंने किताबें खरीदनी थी, उन पैसों से मैंने लैपटॉप खरीद लिया। लैपटॉप खरीद के मैंने उसके ऊपर वो डाउनलोड कर लिया, आई मूवी, एप्पल का लैपटॉप था, और वहां से मैंने बस यूट्यूब पे थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल्स देख के आगे पीछे करके किसी ना किसी तरीके से एडिटिंग की बेसिक्स सीख ली, कट क्या पेस्ट के। हाँ, कंप्लीटली। आई हैवंट हैड अ कोर्स अबाउट एक्टिंग, प्रोडक्शन, टीवी, नथिंग. I've never been to school about a film school at all ever. I've never been taught professionally. बस YouTube से देख के कर लिया सारा। ये तो बड़ा आपने अच्छा किया कि आपने ये सीख लिया। आपका ये जो YouTube का एक before we stepped into YouTube, obviously I didn't understand it that much, but YouTube का अपना एक जो नेटवर्क है और जो कम्युनिटी है बड़ी स्ट्रांग है। And I want to really thank you and people like, Sham and Zaid and all these guys and, Rahim, कि इन आप लोगों की वजह से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, साउथ एशियन कम्युनिटी है, उनका ध्यान और रुझान YouTube की तरफ गया, जिसकी वजह से इवेंचुअली प्लेटफॉर्म्स लाइक अस फाउंड एन ऑडियंस। सो ये आपके लिए बड़े क्रेडिट की बात है, and I'm very grateful to you for that. ये जो डायनामिक थी एक कम्युनिटी की, एंड स्पेशली all of you in Canada, Sham and Zaid, तो ये एट व्हाट पॉइंट डिड ऑल ऑफ यू टाई अप? मुझे सॉरी उसकी ज्यादा नहीं पता है, आई नो कि वो आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक है कनेक्शन। मेरे ख्याल में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मुझे बहुत ज्यादा ड्रामे हुए हैं यार। वो कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार होता है वहां पे इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी है और उसको डिस्कस करने में आपका शो गुजर जाएगा, सो लेट्स नॉट गो देयर। बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक आई मेट शाम एंड जैद इन 2015। 2015 में मैं इनसे पहली दफा मिला था दोनों से। और उस वक्त आप सब अलग अलग बना रहे थे कंटेंट? मैं तो बना ही नहीं रहा था। आप नहीं बना रहे थे? नहीं, तो ये उस वक्त की बात है जब मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में, और वो जैद ने वीडियो मेरी कर ली थी कॉपी। तो मैंने ना एक, जैद ने कॉपी की? हाँ, 200-300 फॉलोअर्स थे मेरे टोटल। मैंने एक वो 200-300 फॉलोअर्स की पावर अपने कंधों पे रखी और मैंने कहा हम इस बंदे को जवाब देते हैं। तो मैंने उसको इतना बड़ा मैसेज लिखा कि यार प्लीज यार मेरी वीडियोस तुमने क्यों चुरा ली हैं, ऐसा ना करो यार, तुम्हारी वजह से हम जैसे लोग फुल गुर्बत में ना, मैंने उसको नीचे घुस के फुल के प्लीज यार आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप ना करें ऐसा। जैद ने वो मैसेज पढ़ लिया कहीं से, उसने मुझे रिप्लाई किया कि यार मैं तुमसे बहुत अपोलोजाइज करता हूँ, ये वीडियो मैं तुम्हारी कॉपी नहीं करना चाहता था, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास भी था, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कॉम्पनसेट करने के लिए तुम्हें। मैंने कहा डन। मैं जैद से मिला उस वक्त। एट दैट पॉइंट यू एंड जैद डिडंट नो ईच अदर? नो, आई डिडंट नो, वी डिडंट नो ईच अदर। जैद से मैं मिला, जैद ने मुझे कहा कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास एक वीडियो का आइडिया है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, अब मैं कनाडा में हूँ, कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तो घर आके तुम्हारी वीडियो शूट करते हैं। मैंने कहा डन। यार हमने वो वीडियो शूट की, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वीडियो गॉट 8 मिलियन व्यूज एंड 300,000 लाइक्स। जैद अपलोडेड इट। मेरी जिंदगी ओवरनाइट चेंज हो गई। मैंने कहा यही है बस, अब इसके बाद मैं कहीं और जा नहीं सकता। मैंने कहा यही है। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपने कहा कि अब YouTube पे बनाना है कंटेंट। मैंने भी ये फेसबुक की बात है, ये फेसबुक के जमाने की बात है। इस वक्त तो मेरा कुछ भी नहीं था ना, थोड़े से 200-300 मैंने जैसे आपको कहा फॉलोअर्स थे। तो जैद से मैंने उस वक्त कोलैबोरेट किया
लेकिन जैद ने मुझे टैग नहीं किया उस वक्त। जैद हम लोग ना एक दूसरे को टैग नहीं करते थे क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का था कि जब आप किसी को टैग करेंगे ना तो व्यूज कम हो जाते थे। अच्छा, वो अजीब सा कुछ एल्गोरिदम था। तो उस वक्त को मुझे लोग जैद की वीडियो में देख लोगों ने जरूर लिया था, लेकिन मेरा कोई पता नहीं था कि है कौन। हाँ, नाम नहीं पता था मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता जैद को भी पता लगा कि मुझे ऑन टीम रखने में या मेरे साथ काम करने में उसको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे ओरिजिनल आइडियाज हैं जो उसको फायदा दे रहे हैं, और उसके साथ मेरा होना और मेरे साथ उसका होना हम दोनों को बेनिफिट कर रहा था। फिर इक्वेशन में आया शाम इदरीस बहुत अरसे बाद, तकरीबन 1 आध साल बाद उसके, कि जब मैंने इन दोनों को बुलाया, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, फिर इन दोनों को मैंने अपने घर बुलाया, मैंने इनकी सुलह करवाई, बात करवाई, और फिर हम लोगों ने ट्रूली एक साथ काम करना शुरू किया, एज अ टीम कह लें या एज कॉम्पिटिशन कह लें, कि तीनों ने अपने अपने चैनल्स बना के तीनों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। एंड दैट वाज, आई बिलीव, द फर्स्ट बिग कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज फ्रॉम पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप जो थी वो ज्यादातर पाकिस्तान में ही थी। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रॉपरली बना नहीं रहा था। तो इस तरह लोगों ने हमें देख के एंजॉय करना शुरू किया और मिलियंस ऑफ व्यूज आना शुरू हुए, सबसे ज्यादा व्यूज आना शुरू हुए हम कैनेडियन पाकिस्तानीज को, बिफोर द पाकिस्तानीज ओवर हियर। अब तो यहाँ पे पाकिस्तानी जो यहीं पे लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा व्यूज लेकर आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये था, उस वक्त की रियलिटी ये थी कि वहां पे हम तीनों ने जब कोलैबोरेट करना शुरू किया, फिर आई थिंक यहाँ पे आज भी उस तरह की कोलैबोरेशन नहीं है जिस तरह की हम उस वक्त कर ली थी। नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली आप लोगों ने जो रास्ते खोले हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर during this time 2017-18 people were not taking YouTube in Pakistan as seriously as you guys were pursuing it there in Canada, and people were like यार ये क्या, कहना नहीं चाहता, बट द रियलिटी इज कि जिस तरह आजकल टिकटॉक के बारे में कुछ लोग सोचते हैं उस तरह शायद यूट्यूब के बारे में उस टाइम पे सोचते थे। बट फिर यूट्यूब ने इतने लोगों को रोजगार दिया, अपॉर्चुनिटीज दी, पॉपुलैरिटी दी, लोगों को बेहतरीन कंटेंट दिया। सो आप लोग मेरे ख्याल में you guys deserve a lot of recognition and credit for that. I'm so glad that I'm meeting you and I'm telling you this in person. You're really moving forward now, Shavir, ये कर लिया, यूट्यूब पे भी सारा कुछ कर लिया, अब मतलब वेब सीरीज का भी डेब्यू हो गया, पॉपुलैरिटी भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में है, कंधों पे बोझ भी है, पता भी है कि बोझ है, पता भी है कि पॉपुलैरिटी है, विजन भी आपने शेयर कर दिया। विजन तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या अपना रहे हैं आप? सर, आई हैव माय हेड स्ट्रेट, आई नो वेयर आई वांट टू बी, दैट इज द टॉप। आई नो वेयर आई वांट टू बी, आई वांट टू बी एट द टॉप, आई वांट टू बी द बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान, आई वांट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर इन पाकिस्तान। नाउ आई डोंट नो कि यहाँ पे सक्सेस को किस तरह तोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपनी लेगेसी ऐसी छोड़ के जाऊँ पीछे, जब मैं जाऊँ यहाँ से, कि लोग उन फिल्मों को देख के, उस काम को देख के मुझे हमेशा याद रखें। दैट इज़ माई गोल। I want to make a change. I want to represent our society, our culture. I feel like there is so much that we can discuss, लेकिन हमारी representation कोई नहीं है। I mean, don't you find it sad that the only film or one of the most popular films on the life of Prophet, peace be upon him, is a Hollywood production, The Messenger? I mean, they had to come over here, dig up a story, our story, and go back and shoot it because there's no representation in our culture. I want to explore those opportunities. I want to make a film on Quaid-e-Azam. There needs to be a film on जिन्ना मैं कहने Quaid-e-Azam. लगा था कि जिन्ना हमने नहीं बनाई, जिन्ना हमने नहीं बनाई. There needs to be more films. Iqbal, what characters, mind-bending philosophies, amazing culture, the language of Ghalib, Mirza Ghalib. All of these are Indian characters, but India is a subcontinent जिसके अंदर हम सारे आते हैं. हम एक ज़माने में सारे, एक वक्त में हम सारे Indians ही थे. उससे पहले आप चले जाएं, इस्लाम को एक्सप्लोर करें. You know, there is so much beauty about this culture, about our society that nobody is exploring, and I want to explore that. So that is the goal. How do I get there is divided into strategies. Strategy number 1. Dominate social media, because social media is the future of this country. I know that for a fact because it's the future of the world. Everybody is on social media. Slowly the television is dying, social media is taking its part. If you don't believe that, well, you're going to lose, because at one point जब रेडियो हर घर घर में होता था ना रेडियो, और जब नया नया टीवी आया तो लोगों ने कहा यार टीवी बहुत महंगा है, ये चीज फ्लॉप है,
कहाँ गया रेडियो आज? इसी तरह जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा यार टीवी नहीं चलेगा, वो कहता है यार छोड़ो तुम क्या बात कर रहे हो, इंटरनेट क्या है, किसी को पता नहीं इंटरनेट को, व्हाट इज द वेब, व्हाट इज इंटरनेट, नोबडी न्यू। लेकिन आपने स्लोली देखा कि अब टेलीविजन इन द वेस्टर्न नेशंस इज ट्रांजिशनिंग आउट एंड इंटरनेट इज टेकिंग ओवर, सोशल मीडिया इज टेकिंग ओवर, हेंस नेटफ्लिक्स आया ना, सिनेमाज आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे सिनेमाज बंद होना शुरू हो जाएंगे, नो पीपल आर गोना वॉच द फिल्म्स हियर, दिस इज द फ्यूचर, आई कैन गारंटी यू दैट। तो मेरा गोल ये है डोमिनेट सोशल मीडिया, क्योंकि अगले 5 साल में पाकिस्तान के अंदर भी आई बिलीव टेलीविजन इज स्लोली गोइंग टू ट्रांजिशन आउट and internet is going to take over. So when that happens, I need to be the best at it. तो goal 1 तो achieved. नहीं अभी नहीं सर. Dominate social media, तो you are dominating social sir, media. inshallah. Second goal is to bring production side into social media. I want to become a producer myself because I know for a fact that यहाँ पे लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते और उसकी रीजन भी है. आप क्यों रिस्क लोगे जब आपको पता है बिजनेस, स्मार्ट बिजनेसमैन तो वही है जिसको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, जिसको पता है कि यार ये मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ 1 के 2 हो जाएंगे. अगर आपको लग रहा है कि 1 का आधा रह जाएगा तो फिर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा. तो मैं नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ टीम, बिल्ड अ टीम, एंड इन द नेक्स्ट 5 years you'll see that I'll be producing inshallah lots of films on my own, and that is the goal, and this is the way to get there. Make enough money off of social media that you are producing your own films and other films. तो ये जो आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, I can see a producer in you because you speak like one. ये जो I don't know if this is a compliment or what. It is indeed a compliment because you see इस तरह का जो आपने 8-9 जॉब्स गिनवाई हैं, ये truly a producer's work है ना, कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी आप खुद हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी आप खुद हैं, लाइट भी आप खुद कर रहे हैं, एडिट भी आप खुद कर रहे हैं, डायरेक्शन भी खुद कर रहे हैं, लिख भी खुद रहे हैं, डायरेक्ट भी खुद कर रहे हैं. तो ये एसेंशियली एक प्रोड्यूसर की जॉब है ना, ये टीम बिल्ड करना. तो अगर आपने अपने अंदर से वो टीम निकाली, दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूर अ प्रोड्यूसर, राइट. सो ये जो आपका अब फॉरमोस्ट, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि मूविंग फॉरवर्ड हम सब लोग अब फोनों के ऊपर ही देख रहे होंगे चीजें, OTT प्लेटफॉर्म्स की गेम है. तो आप जो फिल्म बनाएंगे वो आप OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ आपका भी रुझान है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, वेब की तरफ ज्यादा काम करेंगे, या कोई फीचर फिल्म की तरफ जाएंगे, या जैसे मैंने टीवी का आपसे पूछा ड्रामों की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में अभी तक तो, और मुझे लगता है कि अगले कम से कम 1 डेकेड तक तो टीवी ही डोमिनेट करेगा. I don't know what the future holds and I don't know what kind of films I'll be making or what platforms I'll be making the films on. लेकिन देखिए मेरा आइडिया एट द एंड ऑफ द ये है कि कुछ वो किया जाए जो कि एंड गोल की तरफ मुझे लेकर जाया जाए. मैं वहां जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं वो चीजें करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे गोल तक पहुंच जाए, और वो गोल मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. अब वहां तक पहुंचना कैसे है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचना है, वो डिपेंड करता है. अगर OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म फ्यूचर है, ये रियलिटी है. जो चीजें दुनिया में हो जाती है ना, वेस्ट जो चीजें अप्लाई कर देता है, यूज करना शुरू कर देता है, वो आनी होती है, वो पाकिस्तान में इवेंचुअली आ जाती है. उसको 5 साल लगते हैं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक. रफली 5 years ago Netflix started up, now it's dominating in Pakistan. आज TapMad स्टार्ट कर रहा है, ये डोमिनेट करेगा. OTT is going to dominate in Pakistan in the next 5 years. मैं ये गारंटी आपको कर सकता हूँ. तो मुझे पता है फ्यूचर क्या है. Elon Musk is one of my idols. He said a good businessman is somebody who invests in the future. I want to invest in the future. I am the type of person who always thinks about the future, who always wants to invest in the future. Yeah. So I will invest in web. I will invest in content creation that will end up going on these OTT platforms or social media. शायद वो YouTube पे ही चला जाए. But are you open to the idea of working in a feature film and in a TV drama? Absolutely. Something that is, again, as I said, challenging enough. And this is, you know, लोग नाराज भी होते हैं, ये मुझे पता है इस चीज का. और नाराज नहीं होते और फिर अगली बार ऑफर भी नहीं करते कि इसने हमारा नहीं किया. देखिए मैं लिटरली वेरी हम्बली टेलिंग यू ऑल कि इट्स नॉट कि ये कोई ईगोटिस्टिक अप्रोच है. मेरे गोल्स नहीं है, बस अलग हैं थोड़े से, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ जिसमें मेरा दिल है. अगर मेरा दिल नहीं होगा, मेरा दिल ही नहीं करेगा काम करने का, और मेहनत भी नहीं डालेंगे फिर. हाँ, ये ना इसमें प्रोड्यूसर का फायदा है ना इसमें मेरा फायदा है. तो मैं वो चीज करना चाहता हूँ जिसमें मैं बिलीव करूँ. और इंशाल्लाह और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब लोग बनाना शुरू हो गए हैं. मैं तो वेट कर रहा हूँ यार,
कि मुझे आए ऑफर्स उन प्रोजेक्ट्स की और मैं उनको कंसिडर करूं, बट उनकी नहीं आ रही, लेकिन अभी उनकी ऑफर्स दूसरों वालों की आ रही हैं, जो कि वो भी काफी अच्छी हैं। शाविर, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू एंड हेयरिंग फ्रॉम यू। और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा जबरदस्त है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे यूथ जो देख रही होगी ये वीडियो, आई एम सर्टन जो कि देख रहे होंगे बिकॉज वो आपको जानना चाहते हैं, वो इससे बड़ी इंकरेजमेंट लेंगे। पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट ऑन यूट्यूब, एंड ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड आल्सो बिकॉज आई एम मेकिंग माई लिविंग ऑफ यूट्यूब नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पीपल आर, तुम इसके अलावा क्या करते हो यूट्यूब के अलावा? एंड आई टेल देम, यू नो, ये बड़ा मुश्किल काम है और मैं यही करता हूँ। एंड आई सपोज कि आपको भी ये सवाल काफी आता होगा। तो ये जो मॉनेटरी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट है एक यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने का, आपने जैसे बताया कि शुरू में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ा, आपने उबर भी चलाई, आपने पिज्जा हट में भी काम किया, उस हवाले से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग लड़के लड़कियों को जो कि चाहते हैं कि वो आपको फॉलो करके यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें? देखिए जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटेंट के बारे में उतना सीरियस है जितना मैं था, क्योंकि नेवर फॉरगेट, ये एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन इज़ माय फर्स्ट लव। मेरे दिमाग में कभी कुछ आइडिया भी नहीं आया कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, कभी थॉट भी नहीं आई, थोड़ी सी भी नहीं। तो मेरा तो वो पैशन था कि एक फुल टाइम स्कूल कर रहा हूँ, उसके बाद स्कूल से मैं 3 बजे फारिग होके डायरेक्ट जॉब पे जाता था। 4 से 11 मेरी शिफ्ट होती थी। 11:30 बजे इतनी स्नो में मैं घर वापस जाता था बस के अंदर, आधा घंटा वेट करता था बस स्टेशन पे, फ्रीज हो रहा होता था। रात को 1 बजे घर पहुंचता था क्योंकि 1 घंटा दूर था, और घर जाके मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। और उस वीडियो ने मुझे आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि ये वो जमाना है जब यूट्यूब या फेसबुक आपको पैसे नहीं देता था। अगर आप इतना सीरियस हैं अपनी कोई भी क्राफ्ट को लेके, चाहे वो एंटरटेनमेंट है या चाहे कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके तो मनी शुडंट मैटर। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके तो 100% पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, और अल्लाह इतना देगा, इतना पैसा आएगा उस चीज के अंदर कि आप हैंडल भी नहीं कर सकेंगे। ये चीज मैं गारंटी कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट है, अपनी जान मारने को तैयार है उस काम को करने के लिए, तब। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। आई बिलीव यू शुड डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, नॉट समथिंग दैट वुड मेक यू मनी। क्योंकि अगर आप पैसे के लिए यूट्यूब करेंगे तो शायद आप थोड़े दिनों में डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है बॉस। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट, इट्स हार्ड, इट हैज रेनी डेज। महीने हो सकता है रुपया भी ना बने, और अगले महीने एकदम से ऐसी डील है जो आपकी जिंदगी चेंज कर दे। तो इट कंप्लीटली मैटर्स, इट डिपेंड्स कि आपका पैशन किस तरह का। सो आई लीव इट एट दैट। हाँ, लेकिन टू दोज हु रियली वांट टू डू इट, इफ यू रियली वांट टू डू इट, जस्ट स्टार्ट। बाकी सारी थॉट्स निकाल दो अपने दिमाग से, बस शुरुआत कर दो, उसके बाद हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। I completely endorse what Shavir said, क्योंकि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप कंटेंट कभी क्रिएट नहीं कर सकेंगे, और अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। दैट इज द बॉटम लाइन। शाविर, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वाले और कुछ नहीं तो कम से कम इंस्पिरेशन लें, क्योंकि शाविर जैसे हमारी जो यंग हीरोज हैं, कॉल हिम वेरी मच अ हीरो, उनकी हमें ज़रूरत है। और हम वैसे ही बात करते हैं कि इंस्पिरेशनल फिगर्स हमारी सोसाइटी में कम है, बट जो आप लोगों ने और आपके सारे यूट्यूब कम्युनिटी ने जो किया है पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म के रिवाइवल या ग्रोथ के लिए, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले सबके लिए मैसेज तो लेना ही लेना है मैंने। आपने अमीरा और अलीजा, मेरी 2 बेटियों के लिए स्पेशल मैसेज एक देना, वरना वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगी आज। अमीरा एंड अलीजा, little princesses, thank you so much for all of your love. Thank you so much. You guys are the one that make people like me wanna do better in life. Just remember that. You guys are the ones who motivate me, inspire me to do better in life. So keep loving, keep showing your immense unconditional love to people like myself and other people, and God bless you. Allah Hafiz. And to the viewers, सेम मैसेज जो मैंने अमीरा वगैरह को दिया, एग्जैक्टली से अमीरा एंड अलीजा को जो मैसेज दिया, एग्जैक्टली आप लोग को भी वही मैसेज है। आप लोग के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 12वां खिलाड़ी देखना मत भूलिएगा। इस प्रोजेक्ट को हमने बहुत प्यार से बनाया है, और आप उसको उतने प्यार से देखिएगा जितने प्यार से हमने इसको बनाया। थैंक यू सो मच। यार आई फील लाइक हमने सॉरी, बाय द वे, टैपमैट पे आ रही है। टैपमैट इज अ OTT प्लेटफॉर्म
जो पहले 2 एपिसोड 12वां खिलाड़ी के बिल्कुल फ्री हैं, 5 मार्च को आ रही है पहला एपिसोड, 6 मार्च को सेकंड एपिसोड, हर सैटरडे संडे इसके 2 एपिसोड्स आते रहेंगे और टोटल 7 एपिसोड्स हैं। ये मैंने रट्टा मार लिया हुआ था इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह करके आया, लेकिन ट्रस्ट मी यू गाइस आर गोना लव इट। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे ना, आप लोग को बहुत मजा आएगा और कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो या पहली किस्त 12वां खिलाड़ी की आ रही है 5 मार्च 5 मार्च को 12वां खिलाड़ी की पहली किस्त आ रही है। पहली 2 किस्तें आ रही हैं जो कि YouTube पे आ रही हैं और YouTube पे नहीं YouTube पे नहीं, टैपमैट पे टैपमैट पे आ रही है, लेकिन फ्री टू वॉच। ठीक है, मुझे ये पता चला कि शायद YouTube पे भी कुछ उसका पार्ट वो थोड़े बहुत मेरे ख्याल है टीजर्स वगैरह डाल रहे हैं YouTube पे, लेकिन नॉट दैट। पूरी एपिसोड देखने के लिए आपको टैपमैड की TAPMAD की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फोन के ऊपर। उसको डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें। पहली 2 किस्तें 12वां खिलाड़ी की उसमें आप मुफ्त देख सकते हैं और उसके बाद जो बाकी की 5 किस्तें हैं उसको देखने के लिए आपको बड़ी नॉमिनल आई थिंक 200 रुपये पर ईयर या पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ आई थिंक उसकी फी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। थैंक यू वंस अगेन शावीर, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आपका बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका विजन मुझे बहुत पसंद आया है एंड रेस्ट अश्योर्ड कि समथिंग हॉट में हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। हमारी जब भी आपको जरूरत हुई, वी विल ऑलवेज बी देयर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।